رپورٹ ڈپٹی بیورو چیف ہارون یوسف زئی سے پشاور تھانہ ریگی کے ایس ایچ او مراج خالد کی کامیاب کارروائی، منشیات فروش سمیت دیگر جرائم میں ملوث ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 1590 گرام آئس، 2.5 کلو گرام چرس اور موبائل فون برآمد کر لیے۔ ایس پی سٹی خالد عوان سری اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی خصوصی گفتگو، مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ سے۔ جی احتشام بتائیے گا۔ کیوں جی، اس وقت جیسے کہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ایس پی سٹی خالد عوان، جو کہ ایک جانا پہچانا نام، اور ماشاءاللہ جب سے آئے ہیں یہاں پہ ان کے سرکل میں تقریباً کرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ راتوں کو یہ خود بھی گشت پہ ہوتے ہیں، ہم بھی جس طرح سارے دیکھتے ہیں دیگر، ہم ان سے جانیں گے کہ کتنا مشکل ہے اس سب کو مینیج کرنا، اور میرے خیال میں ان کی بھی نیند ہماری طرح نہیں پوری ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں ایز اے ایس پی سٹی تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ تو پولیس کا جو کام ہے اسپیشلی سٹی میں لا اینڈ آرڈر بھی ہے، اس کے علاوہ کرائم پریونشن بھی ہے، پھر ڈیٹیکشن بھی ہے، لیکن ہمارے جو آئی صاحب کی جو اپروچ ہے نا، پرو ایکٹیو اپروچ پلس ری ایکٹیو، ہم اس پہ گامزن ہوئے ہیں۔ اس سے الحمدللہ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم سارے جو کور ٹیم ہے رسپانڈ کرتی ہے۔ اب جیسے اس دن وہ ملائیشین اور ایک پاکستانی اغوا ہوا تو راتوں رات ہم نے الحمدللہ وہ سارا کیس ٹریس کر لیا۔ اس طرح وہ ایک ڈچ خاتون کے ساتھ ہوا ریپ، تو یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے ساتھ چونکہ ہمارا اپنا ریلیشن شپ بڑا اچھا ہے اور پارٹنرشپ کا ہے، تو اس کی وجہ سے پرو ایکٹیو اپروچ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں پہلے ہی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر میں خصوصی طور پہ تو اللہ کرتا ہے اس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اور ہماری ڈالفن اسکواڈ، پیرو اسکواڈ، سٹی واچرز اور ایس ایچ اوز، ہمارا اس وقت گروپ بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ اچھا، نو ڈاؤٹ سر آئی ایم ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک یور مور پریشیس ٹائم۔ سر کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کا یہ سرکل ہے، اس میں آن لائٹر نوٹ سب سے اچھا تھانہ کون سا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، میرے ایس ایچ اوز ہیں، ایس ایچ او کراچی کمپنی بڑا پرو ایکٹیو آفیسر ہے۔ سملرلی ایس ایچ او اپنا ابھی آیا ہے سیکریٹریٹ، وہ بھی بڑا اچھا ہے، اور باقی بھی ایس ایچ اوز میرے سارے اپارا مطلب ایکولی دے آر گڈ۔ تھوڑا سا ان کو آپ کو خود ان کی کیپیسٹی ان کو آپ پش کرنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے۔ تو جب ہم خود انوالو ہوتے ہیں تو اللہ کرتا ہے سارے اچھے افسر ہیں، سارے رزلٹ اچھا دے رہے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ میں جیسے اس دن ڈی آئی جی جواد طارق صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، بڑی ماشاءاللہ اچھی ایک پازیٹیو ملاقات رہی۔ اس میں ہم نے یہ ایک انکوائری تھی جس طرح آپ کو مار کے آئی سر، کیونکہ آپ کے اوپر یہاں پہ لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی انٹروگیشن ہے۔ میرٹ کے اوپر آپ نے ایف آئی آرز وہ بھی دی ہیں جو نہ ہونے والی، شاید بہت پریشر کے اوپر، تو اس حوالے سے سر کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہماری کلائنٹیل آپ پبلک ہیں، اگر آپ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا ایسٹ ہے۔ ہماری تو سب سے امپارٹنٹ ہماری کمائی یہ ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کریں، لوگ ہمیں اپنا سمجھیں، اور ہم بھی اونرشپ فیل کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، اس وقت جیسے کہ ہمارے ساتھ ایس پی سٹی خالد عوان موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو ان کا سرکل ہے، جس طرح پوری ٹیم پرو ایکٹیو ہو کے کام کر رہی ہے، جس طرح انہوں نے 2-3 کیسز بتائے وہ فوراً سے پہلے حل ہوئے اسی ٹائم میں۔ سب سے مین کیس بازیابی والا تھا جو اغوا ہوئے، اس کے اوپر ہم ان کو بالکل یہاں پہ اپریشیٹ بھی کریں گے۔ اور لاسٹ میں میں نے جیسے ان سے آن لائٹر نوٹ پوچھا کہ کون سے ایس ایچ اوز، تو انہوں نے کوئی مینشن بھی کیے، باقی ان کا کہنا ہے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ٹیم ورک۔ سیکنڈ لاسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح عوام کا ان پہ اعتماد ہے، کیونکہ عوام اعتماد کرتی ہے، اگر ہم ایک میڈیا پرسن ہو کے جیسے جاتے ہیں ڈی آئی جی صاحب کے پاس اور وہاں پہ ہم ان کو ایک اپلیکیشن مار کراتے ہیں، تو اب ایسی بات ہے ہمیں میڈیا والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کون سا افسر کتنا اچھا کیا کام کر رہا ہے۔ میں یہیں پہ یہ ختم کروں گا کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ خالد عوان صاحب اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے، اور اللہ پاک ان کو اور بھی ترقی نصیب کرے۔ کیمرہ مین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ تھینک یو۔ ٹریفک حادثے کی اطلاع لاہور کلالاں والا کھو مانگا منڈی کے علاقے سے ٹریفک حادثہ کی اطلاع، ریسکیو 1122 لاہور ریسکیو ایمرجنسی گاڑیاں جائے حادثے پر موجود۔ کلر کے مطابق بس نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، ٹریفک حادثے میں جاں بحق شخص کی ڈیڈ باڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق شخص کی شناخت اللہ یار عمر 42 سال، ریسکیو 1122 محمد نفیس حنیف، اون نیوز مانگا منڈی۔
खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। अपने नुमाइंदे सजाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक भुज्जी के नवाही इलाका बड़ागर में होने वाला 28वां सालाना बाबा दीवान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। मरूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फतेह दीवान के उर्स मुबारक तकरीब के सिलसिला में होने वाली टूर्नामेंट का अफ्ताह डायरेक्टर अजहर इकबाल एंड कॉलेज ज़ेर निगरानी उम्मीदवार बराए जनरल कौंसल बड़ागर मलिक काशिफ रजा वट्टू, मरूफ सियासी समाजी कारकुन हाजी नदीम बारी, पंजाब पुलिस राय साकब सुहेल भट्टी, मलिक असलम वट्टू व्यापारी, आसिफ शान खोखर। इस मौका पर टूर्नामेंट के सदर मलिक हसन रजा वट्टू, चौधरी मोइज़ बारी, चीफ ऑर्गेनाइज़र एजाज अहमद कलंदरी, रियाज वट्टू, वसीम छीना, आसफ अफरीदी वट्टू, चौधरी मनीब बारी, मलिक रशीद, रिजवान वट्टू, हसीब वट्टू भी मौजूद थे। इब्तिदाई मैच बाबा फतेह दीवान क्रिकेट बड़ागर और खान क्रिकेट क्लब कोट अकबर के माबेन खेला गया, जिसमें खान क्रिकेट क्लब ने मुकर्रा ओवर्स में 58 रन बनाए, जिसके तौक़ुब में दीवान क्रिकेट क्लब ने मुकर्रा ओवर्स से पहले हदफ पूरा कर लिया। शायकीन की एक बड़ी तादाद ने इफ्तिताह मैच से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई। मियाँ वाली ब्यूरो चीफ कैसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली खालिद शहरियों के लिए एक और बड़ा इकदाम। म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के बाहर शहरियों के लिए ठंडे पानी की सबील लगा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन की एक और तकमील। शहरियों के लिए ठंडे पानी की सहूलियात। जिला में पहली बार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अहमद लोन चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक सजाद महमूद का डिप्टी कमिश्नर की हदायत के मुताबिक शहरियों को ठंडा पानी मुहैया कर दिया गया। अवामी समाजी हलकों का ज़िला इंतजामिया को खराज तहसीन। शहरी दिफा मीरपुर के तरबीती स्टाफ चीफ इंस्ट्रक्टर अब्दुल रऊफ कमर और इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बशारत ने तहसील डडियात में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कायम करदा सेंटर्स में तरबियत मुकम्मल कर ली है, जिसमें फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, एमरजेंसी रेस्क्यू मेथड्स की तरबियत दी गई। अब तक 6 सेंटर्स ने तरबियत हासिल कर ली। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बलो, गवर्नमेंट हाई स्कूल बहारी, गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल डडियाल, गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल सियाक, गवर्नमेंट हाई स्कूल खादमाबाद, गवर्नमेंट बशारत हाई स्कूल प्लान। इन सेंटर में मज़ाफ़ात के मिडल और हाई स्कूलों को भी शामिल किया गया। इदारा जात के सरबराह खान ने सिविल डिफेंस मीरपुर के तरबीती स्टाफ की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, मौजूदा एमरजेंसी सूरत हाल में सिविल डिफेंस की तरबियत मुलाजमीन तलबा के लिए मुफीद साबित होगी, जिसकी वजह से अपनी और दूसरों की जान को बचाया जा सकता है। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कोटरी लोहारा ने दोहरे कत्ल का मुलज़िम रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। थाने मुंतकिल तफ्तीश जारी। कोटरी लोहारा के रहायशी मुलज़िम इमरान बाग अली ने नाजायज़ ताल्लुकात के शुबा में चंद रोज़ कबल अपनी बीवी सना और आशना एहतशाम को कत्ल किया और बरहना लाशें ठिकाने लगाने जा रहा था कि मोहल्ला बलूवाल के करीब गाड़ी खंबे से टकरा गई, जिस पर मुलज़िम दोनों लाशों को कार में छोड़कर मौके से फरार हो गया। ताहम पुलिस थाना कोटली लोहारा ने मुलज़िम इमरान बाग अली को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे थाना कोटली लोहारा मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। मनसहरा बुफा में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा बखैरियत एहतमाम पजीर। ज़िला इंतजामिया और पुलिस के मौसर इकदाम को शुरा का खराज तहसीन। मनसहरा बुफा मेरा में मुनक्कद होने वाला 3 रोज़ा अजीमुशान तबलीगी इज्तिमा कामयाबी और हैरियत के साथ एहतमाम पजीर हो गया। इज्तिमा में हज़ारों डिवीज़न समेत गिलगित बल्तिस्तान से लाखों की तादाद में अवामुन्नास ने शिरकत की। इज्तिमा के आखिरी रोज़ डिप्टी कमिश्नर मनसहरा खालिद इकबाल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मनसहरा शफीउल्लाह गंडापुर ने मरकजी पंडाल का दौरा किया और एहतमामी दुआ में खसूसी शिरकत की। इस मौका पर ज़िले अफसरान, उलमा कराम, सियासी समाजी रहनुमाओं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवाम उन्नास की बड़ी तादाद मौजूद थे। एहतमामी दुआ में मुल्क व कौम की इस्लामती इस्तेहकाम और अमन अमान के लिए खसूसी दुआएँ की गई। इसके साथ साथ मनसहरा पुलिस, ज़िला इंतजामिया और दीगर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत, पेशावराना खिदमत और बेहतरीन ड्यूटी को भरपूर सराहा गया और इनके लिए खसूसी दुआएं की गई। DPO मनसहरा शफीउल्लाह गंडापुर ने इज्तिमा के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर इंतजामात का खुद जायज़ा लिया, मुख्तलिफ मकामात का विज़िट किया और तबलीगी जमात के मुंतज़मीन से इंतजामात से मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की। मुंतज़मीन ने पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से किए गए इक़दामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और बहरो खूबी इज्तिमा के इनेकाद पर मनसहरा पुलिस समेत तमाम मुतल्लिक़ा महकमों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। मनसहरा पुलिस ने इज्तिमा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाते हुए दाखिली खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम किए, वाक थ्रो गेट नस्ब किए गए और इज्तिमा गाह के इतराफ पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात की गई। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मरबूत हिकमत
اسمبلی کے تحت مؤثر اقدامات کیے جن کی بدولت شرکا کو آمد و رفت میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ان تمام مؤثر اقدامات پر شرکا نے منصہرہ پولیس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ ڈی پی او منصہرہ نے اجتماع کے کامیاب اور پرامن انعقاد کے لیے زبردست ڈیوٹی سر انجام دینے پر تمام افسران جوانوں کے لیے تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین بکھر کے لیے ایک بڑا اعزاز سیشن 2024-25 کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 25 طالبات کو سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، جن میں 11 طالبات نے 22 مئی 2025 کو سرگودا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام میں کالج کی پرنسپل میڈم فریدہ جعفری، وائس پرنسپل مس رفعت سعید اور آئی ٹی ٹیچر نائلہ مرید کے ساتھ جا کر لیپ ٹاپ وصول کیے۔ اس موقع پر کالج کی پرنسپل میڈم فریدہ جعفری نے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان الحق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز ہے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے اس کی پروگریس دیکھ کر 2024 میں اس کو بی ایس کالج کا درجہ دیا اور پہلے ہی سیشن میں 2024-25 کے لیے میرے کالج کی 25 طالبات کو لیپ ٹاپ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ برائے خواتین بکھر پہلا کالج ہے جس میں بی ایس کی کلاسز کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ آنے والے سال میں ہماری طالبات زیادہ تعداد میں ایوارڈ حاصل کریں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ فیکٹری کی چھت شٹرنگ گرنے سے ایک شخص جاں باغ، 5 افراد زخمی۔ شیخوپورہ واقعہ پریمیئر پیپر مل نرس چودھری مل سٹاپ لاہور روڈ شیخوپورہ میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق تیز آندھی کی وجہ سے فیکٹری کی چھت گر گئی۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ فیکٹری کی چھت شٹرنگ گرنے سے 6 مزدور نیچے آ گئے۔ فیکٹری کی چھت گرنے سے ایک شخص موقع پر جاں باغ ہو گیا۔ زخمی ہونے والے 5 افراد کو فیکٹری کی ایمبولینس پر ڈی ایچ کیو ہسپتال شیخوپورہ شفٹ کر دیا۔ جاں باغ ہونے والے شخص کی شناخت 35 سالہ شہزاد ول خادم حسین صادق آباد سے ہوئی۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع مٹیاری کے شہر بٹشاہ کا، جہاں موجود ہیں ہمارے بیورو چیف رانا ندیم راجپوت۔ آگاہ کیجیے گا جی رانا ندیم۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں بٹشاہ کے اہم چوراہے تمبورہ چوک پر، جہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا ہے۔ تمبورہ چوک کی دوسری جانب کنڈو آدم روڈ پر، جہاں پر تمام ڈاکٹروں کی کلینک ہے، جہاں پہ مریضوں کو آنے جانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے ظاہرینوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمبورہ چوک کے چاروں طرف ریڑھا مافیا کا راز ہے۔ یہاں پر شہری موجود ہیں، جانتے ہیں ہم ان کا کیا کہنا ہے۔ دیکھیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بٹشاہ تمبورہ چوک پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی تہوار ہو یا ویسے نارمل دنوں میں بھی جو ہے رش بہت ہے۔ چنچیز وغیرہ ریڈیا روڈوں کے بالکل کناروں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بچے، چھوٹے، عورتیں وغیرہ جو بھی آتی ہیں ان کو چلنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ بس یہی درخواست ہے ہمارے انتظامیہ سے کہ کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، کوئی ٹریفک پولیس کوئی بھی باقاعدہ جو قانون کہتے ہیں تو اس رش کو جو تھوڑا جو ہے وہ کم کروائیں، تاکہ عوام کو آنے جانے میں جو ہے وہ آسانی رہے۔ بس یہی درخواست ہے۔ ॾिसो त साईं हिते शहर में रश लॻो पियो आहे। केॾा हेॾा टिंचन वारा तंग कनि, हेॾा सभन वारा तंग कनि। इस्पताल में माण्हू वञे कीअं बि वञे, डॉक्टरनि खे परेशानी, सभिनि ॻाल्हियुनि खे परेशानी। बड़ाई महिरबानी इन जे करे सोचूं था त हितां दंबुरो चौक थोरो ख़ाली कयो। तो अव्हांखे गुंजाइश आहे त महिरबानी करे अव्हां दंबुरा चौक खे ख़ाली करायो ऐं सिधो करे सही नमूने सां ही जॻह में हेॾा रेड़ा बीठा आहिनि, हेॾा टिंचन वारा बीठा आहिनि, हिननि खे थोरो साइड करायो। वधीक महिरबानी अव्हां जी थींदी। टिंचन वॾो स्टाफ, वॾी रश लॻी पई आहे हिते। को 5 मिंट बि माण्हू कोन वञी सघे, या हिते ॿार बचो कजो नथो निकिरी सघे। हिते रुॻो रश लॻी चौराहे ते, ॾाढा डॉक्टर अस्पतालों को मरीज नथो वञी सघे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका भी यही कहना है कि तंबूरा चौक पर बड़े से बड़ा मसला ट्रैफिक जाम का है। यहाँ की आवाम ने अपील की है एसएसपी मटियारी से कि फिलफौर यहाँ पे एक पुलिस एहलकार तैनात किया जाए। डीसी मटियारी एसी हाला टाउन कमेटी चेयरमैन से ये अपील की है कि तंबूरा चौक के साफ करा के क्लियर करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी। घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। वाकया गांव छापा मीनारा में पेश आया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फहीम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गांव छापा मीनारा में घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। तेज़ आंधी की वजह से घर की छत गिर गई। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। छत गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1122 की अमदादी टीम ने जख्मी होने वाले शख्स को DHQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त 27 साला कनान मसीह वालिद वारिस मसीह से हुई। जी।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद की मुनक्कदा कुली कचहरियों में शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन। खेतों में मोटरें, सोलर पैनल और ट्रांसफार्मर चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर सख्त नोटिस, मुलजमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने कुली कचहरियों के दौरान शहरियों की तरफ से मसूल होने वाली शिकायत के पेश नज़र ज़िला भर में खेतों से मोटरें, सोलर पैनल और ट्रांसफार्मर चोरी की बढ़ती हुई वारदातों का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी, मौसर और टारगेटेड कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इन अहकाम की रोशनी में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान कारलू की सरबराही में DSP पिंडी बटियां गाजी आरिफ महमूद खान और SHO थाना सदर पिंडी बटियां मलक अजहर ने मौसर हिकमत अमली और जदीद तफ्तीशी तकनीकों की मदद से कामयाब कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक मोटर चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान जदीद तफ्तीशी महारत, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मुसलसल मेहनत के नतीजे में मुलजमान हक नवाज उर्फ हकूक वल्द मुख्तार सकना कोट मोमिन सरगोदा और जफर वल्द शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा ट्रांसफार्मर, सोलर पैनल, डिलीवरी ट्यूबवेल, नलका मशीनें और फरोख्त शुदा माल की नकद रकम 4,41,000 रुपये बरामद की गई। DPO हाफिजाबाद ने पुलिस टीम की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा और ऐसी कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ की जाती रहेंगी। मज़ीद तफ्तीश जारी है और दीगर मुमकिन साथियों की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात के नसूर के खिलाफ थाना कसोके पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार, हज़ारों ग्राम चर्स और हेरोइन बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की हदायत और जराइम के खात्मे के लिए जारी वाज़िया हिकमत अमली के तहत ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी तसलसल में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान कारलू की ज़ेर निगरानी DSP सदर सर्कल कैसर जमील और SHO थाना कसोकी मुश्ताक नून की क़यादत में थाना कसोकी पुलिस ने रवां माह के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ एक कामयाब मुहिम के दौरान 10 बदनाम ज़माना मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्ज़ा से मजमूई तौर पर 9,706 ग्राम चर्स और 1,260 ग्राम हेरोइन बरामद की है। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुलजमान में नवीद वल्द बूटा सकना कसोकी शामिल हैं, जिसके कब्जे से 1,180 ग्राम चर्स बरामद हुई। अली हसन वल्द अमीर सकना भोन कलां से 1,280 ग्राम चर्स, बाबर अली वल्द यमीन सकना महल्ला काजीपुरा हाफिजाबाद से 1,140 ग्राम चर्स, गुलाम अब्बास वल्द अमीर सकना कसोकी से चर्स बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दफ़ा B9 के तहत दर्ज किया गया। मुश्ताक अहमद वल्द मोहम्मद सदीक से 1,260 ग्राम चर्स, इमदादुल्ला वल्द फैज़ अहमद सकना भोन कलां से 1,060 ग्राम चर्स, मोहम्मद अकमल वल्द सदीक, मोहम्मद इकबाल वल्द शफ़ी से बिलतरतीब 1,080 और 1,140 ग्राम चर्स, नदीम आरफ वल्द मोहम्मद आरफ सकना कोट हसन खान से 1,026 ग्राम चर्स, जबकि आफ्ताब अल्लाह वल्द एहसानुल्लाह सकना ठट्ठा गोंदलान से 1,260 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इन तमाम मुलजमान के खिलाफ थाना कसोकी में मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने शुजाबाद में पुलिस खिदमत मरकज़ और इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन का इफ्तिताह किया। CPO मुल्तान सादक अली डोगर और CTO मुल्तान सरदार मुबारक खान, SP सदर शमसुद्दीन, DSP सर्कल मोहम्मद ज़ियाउल हक, SHO थाना सदर अब्दुल रऊफ लोथड़, SHO थाना सिटी मोहम्मद आसफ, वार्डन इंस्पेक्टर अरशद डोगर, इंस्पेक्टर सैयद शमसुल हसनैन, सेक्टर इंचार्ज अब्दुल्ला फैसल, ट्रैफिक वार्डन नज़ादर अब्बास, ट्रैफिक वार्डन राउ तारक, मलक आज़म, मलक इरफान और दीगर ट्रैफिक अफसरान इस मौके पर इनके हमरा थे। शुजाबाद के वस्त में मौजूद पुराना थाना सिटी की बिल्डिंग में बनाया गया ये स्टेट ऑफ दी आर्ट पुलिस खिदमत मरकज़ में एक ही छत के नीचे पुलिस की तमाम सर्विसेज मौजूद हैं, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लर्नर परमिट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, कानूनी रहनुमाई बराए तशद्दुद ख़वातीन, जुर्म की इत्तला, FIR की कॉपी, अंदराज किराया दारान, गुमशुदगी दस्तावेज़ात, अंदराज घरेलू मुलाजम व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। इस मौका पर RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शुजाबाद के तमाम लोग इस पुलिस खिदमत मरकज़ से फ़ायदा हासिल करें। ख़ासतौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं, इनके मसाइल हल करने के लिए इस सेंटर में बहुत सहूलियात रखी गई हैं।
ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीजनल आमिर करीम खान ने ईद उल अजहा बार इंतजाम के लिए ज़िले इंतजामिया को टास्क सौंपते हुए कहा कि मवेशी मंडियों में ओवर चार्जिंग करने वाले अफराद के खिलाफ शिकंजा कसा जाए, इन अनासर की सरकोबी के लिए मुकदमा दर्ज गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ईद उल अजहा इंतजाम बारे जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि वह तमाम मंडियों के दाखिली हार्जी रास्तों पर लाइव स्टॉक कैंप्स लगाकर चचड़ मार स्प्रे किया जाए। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट कलेक्शन पॉइंट कायम किए जाएं। अहम शहरों के साथ गलियों मोहल्लों में भी जानवरों की आलाइशों को फौरी उठाकर सफाई यकीनी बनाई जाए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सड़कों की सफाई धुलाई यकीनी बनाने की जिम्मेदारी होगी। तमाम मवेशी मंडियाँ सेल पॉइंट यकम जिलहज से फाल कर दिए जाएंगे। तमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम फाल किए जाएं। ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए। ये स्टाफ फील्ड में मौजूद रहे। तमाम सेंट्री वर्कर्स को खाना पीना मुहैया किया जाए। तनख्वाहों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। शहर के तमाम दाखिली हार्जी रास्तों की सफाई तज़ीन और राइश पर खसूसी फोकस किया जाए। मसाजिद की सफाई, दरवाज़ों पर फूलों के गेट्स और रास्तों की खसूसी सफाई करवाई जाए। किसी पार्क के बाहर वेस्ट मैनेजमेंट के कंटेनर्स खरगीज ना रखे जाए। बस अड्डों टर्मिनल की सफाई पर खसूसी फोकस, कैंटीन पर नाकस अशिया खुर्दनोश की फरोख्त पर सख्त एक्शन लिया जाए। तमाम बस अड्डों पर पेट्रोल पंप्स पर पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ईद उल अजहा पर वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रेस्क्यू हेल्थ PHA ड्यूटी रोस्टर जारी करे। कमिश्नर आमिर करीम खान का तमाम पार्कों में लगे झूलों की इंस्पेक्शन करवाने का हुक्म देते हुए कहा था, नहरों पर नहाने पर दफा 144 लगाने बारे हुकूमत पंजाब को लिखा जाए। मानसून को मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजाम किए जाएँ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जलालपुर पीरवाला में जदीद कंट्रोलर लैंड फिल साइट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने जलालपुर पीरवाला का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जदीद लैंड फिल साइट का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर जुल्फकार खान भी हमरा थे। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोकर ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि लैंडफिल साइट पर पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा जियो मेम्बरेज शीट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कंपनी की साइट पर बायोडिग्रेडेबल लेयर का इस्तेमाल माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम है। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि जियो मेम्बरेज शीट के इस्तेमाल से ज़ेर ज़मीन पानी को आलूदा होने से बचाया जाएगा। कंट्रैक्टर ने जदीद लैंडफिल साइट पर जदीद शीट इस्तेमाल करके माहौल दोस्ती का सबूत दिया। आमिर करीम खान ने इस मौका पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम को भी सराहा। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने कहा कि ज़िले के तमाम कंडक्टर्स को भी इस मटीरियल के इस्तेमाल का टास्क दे दिया गया है, जबकि जलालपुर पीरवाला साफ़ सुथरा माहौल के रोज़ाना की बुनियाद पर अपना टारगेट पूरा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कंपनी HR की कमी और मशीनरी की कमी को जल्द अज जल्द पूरा करे। जलालपुर पीरवाला जल्द जलालपुर के बासियों को एक साफ़ सुथरी तहसील देखने को मिलेगी। CEO अब्दुल रज़ाक डोकर ने कहा कि कंट्रैक्टर्स की कारकर्दगी को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं।